Hello, my dear students. Welcome back. So, today we are going to take a new subject that is computer. Computer? How was the computer invented? Was it always this amazing? क्या हमेशा से इतना amazing था computer system? No, it didn't happen in a day. It all began a long time ago when human beings started designing devices that would make calculation easier and faster. Calculations human being perform करता था पहले भी और आज भी करता है बट पहले क्या करता था हैंड स्पैन बोन्स के साथ वुड्स की हेल्प से ऐसे धीरे 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 डिवाइसेस उन्होंने इन्वेंट की तब जाके आज हमारे पास लैपटॉप है वी हैव रोबोट्स वी हैव अदर डिवाइसेस तो ये एक दिन की बात नहीं है बट ये लॉन्ग टाइम अगो से ह्यूमन ने इन्वेंट करना स्टार्ट किया कंप्यूटर्स को okay so in this chapter that is computer over the years we will be studying definition of computer earliest computer कैसे पहले दिखते थे computer history क्या है and what all were the generation of computers so let's take a tour to our computer world कंप्यूटर बेटा क्या है कंप्यूटर इज द मशीन दैट मैनिपुलेट्स डेटा अकॉर्डिंग टू अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जैसे जैसे एक ह्यूमन इंस्ट्रक्शन देता है इट इज अ डम मशीन इट नीड्स इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एनी टास्क ओके तो अगर एक कंप्यूटर को एक डम मशीन को उसको टास्क परफॉर्म करने को हमें देना है तो वी हैव टू टेल सम इंस्ट्रक्शंस सो it manipulates data according to the instructions which are given by the human. So beta, the word computer comes from the word compute, which means to calculate. The first computer were in fact people whose job was to perform long and difficult calculations all day long. पहले computers क्या थे? वो people ही थे. अपनी calculations वो खुद attempt करते थे. long calculations, difficult calculations. But these calculations used to take a long time. इतना time लेते थे and it was useless. इतना time कौन waste करे? And इसमें careless mistakes भी बहुत होती थी. Right? So, scientists ने एक simpler, faster method develop करने की कोशिश की. So, the first use of the word computer was recorded in 1613. याद रहेगा ओके सो द फर्स्ट डिवाइस वाज टेली स्टिक्स सबसे पहले टेली स्टिक्स यूज पहले तो हैंड स्पैन भी होता था लेकिन अगर हम डिवाइस की बात करें तो टेली स्टिक्स वर यूज टेली स्टिक्स देखो आप कैसे हमारी दिखती थी लाइक अ बोन स्ट्रक्चर ये आपको अभी वुड शेप का लग रहा है वुड काइंड ऑफ लग रहा है मटेरियल बट ये एक्चुअल में एनिमल की बोन्स होती थी So this stick was an ancient memory aid device to record and document numbers, quantities or even messages. ये words को use किया जाता था encode, decode messages को करना numbers, quantities, measurements करना okay so let's see the next device it was abacus abacus was the first mechanical calculating machine सबसे पहली mechanical हाथों से ही सही बट चलाने के लिए कोई हमें डिवाइस चाहिए थी तो दैट वाज एन अबैकस इट वाज यूज्ड टू काउंट large numbers and it was also used to do calculation simple calculation addition and subtraction it was invented about 500 years ago पहले ये बनाया गया था चाइना में याद रहेगा ओके सो it consists of number of rods इसमें होती थी with the beads के साथ होती थी इनफैक्ट आपने अबैकस देख भी रखा है हम छोटी प्राइमरी क्लासेस में अबैकस हमने यूज कर रखा है टू डू सिंपल कैलकुलेशंस ओके तो ये बीड्स जो होती थी अबैकस के अंदर वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करती थी calculations on an abacus are done by sliding these beads across the rods कैसे लगती थी हमारी beads
पहले के ज़माने में earlier abacus was like this and now the modern abacus is like this. आप स्टेशनरी शॉप में जाओगे, वहाँ पे abacus देखोगे, एक बॉक्स सेट में मिलेगा हमें with the beads and strings. ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता था बेटा, इसको कहते थे heaven and earth. Okay. So the next device is Napier's bone was invented. It was invented by John Napier in 1614. ओके हमारा अबैकस क्या करता था, सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अलाउ करता था हमें करने के लिए, राइट. बट नेपियर्स बोन क्या करता था, वी कैन डू मल्टीप्लाई, डिवाइड, वी कैन कैलकुलेट द स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स ऑल्सो. सो हम ये रॉड्स को मूव करते थे एंड एक 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 करके प्लेस करते थे इन बोर्ड्स के ऊपर. And then we could do multiplication, division, we can find out the square and cube roots also. Okay, so what was the next device? The next device was Pascaline. So Pascaline was the calculating device which was designed in 1642 by Blaise Pascal. Okay, so he was a French mathematician. मेनली बेटा जितने भी कंप्यूटर्स ज़्यादातर इन्वेंट करे हैं ये किसी प्रोग्रामर ने नहीं किए बट मैथमेटिशियंस ने किए, क्योंकि कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती थी. ओके, सो दिस वाज द सेकंड मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस. इट कुड हैंडल डेसिमल वैल्यूज. अब आपने पढ़ा होगा डेसिमल नंबर्स भी होते हैं हमारे, नॉर्मल नंबर्स भी होते हैं, राइट. तो नॉर्मल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वो तो हम अबैकस में करते थे. सो पैस्कलाइन वाज द डिवाइस which could also perform values, addition, subtraction, multiplication on decimal numbers also. Okay, decimal numbers में कैसे करते थे, आपके सामने कुछ wheels हैं, these are the wheels, आप ये देख पा रहे हो. तो ये wheels की मदद से 9 wheels होते थे, 9 डिजिट का कहते थे wheel सिस्टम है. ये wheels को हम मूव करते थे. फॉर एग्जाम्पल 0.1 हमें करना है तो फर्स्ट व्हील मूव करेंगे, 0.2 सेकेंड नंबर, सेकेंड व्हील मूव करेंगे, रोटेट होते थे व्हील्स. ओके, सो दीज वर ऑल्सो नोन एज द डायल्स ऑफ दिस मशीन. ओके, आपने ऑलरेडी देख भी रखा होगा टेलीफोन डायल्स होते हैं. अगर हमें 1 प्रेस करना था तो हम पूरा राउंड रोटेट करते थे, देन 2 रोटेट करते थे, ऐसे ही हम पूरा नंबर डायल करते थे ऑन टेलीफोन, राइट. तो बिल्कुल ऐसे ही हमारा ये पैस्कलाइन मशीन होता था जिसमें डायल्स होते थे एंड वी हैव टू रोटेट द डायल्स टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डेसिमल नंबर्स. ओके, सो व्हाट वाज द नेक्स्ट वाज जैक्वार्ड लूम. जैक्वार्ड लूम क्या होता था, द जैक्वार्ड लूम इज अ मैकेनिकल लूम इन्वेंटेड बाय जोसेफ मैरी जैक्वार्ड इन 1881. बेटा ये क्या करता था, ये पंच कार्ड्स की हेल्प से डेटा को इनपुट करता था. So the next device was difference engine and analytical engine. This device was invented by Charles Babbage, a British mathematician who is regarded as the father of computing. He is also known as father of computer because he invented the very first mechanical computer, that was difference engine. Okay, अब बेटा आप कहोगे मैम फर्स्ट डिवाइस तो हमारी अबैकस भी है मैकेनिकल डिवाइस. बेटा अबैकस इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन. इट इज नॉट अ कंप्यूटर. सो ही इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर. समझ में आया. सो इट वाज इन्वेंटेड इन 1822 एंड एनालिटिकल इंजन वाज इन्वेंटेड इन 1834. ओके, द एनालिटिकल इंजन वाज पावर्ड बाय अ ह्यूज स्टीम इंजन. एक ह्यूज स्टीम इंजन से पावर ही चलाया जाता था. द इनपुट वॉज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड्स. हमने पंच कार्ड्स अभी जैक्वार्ड लूम में भी पढ़ा था, राइट. लेकिन वो यूज में इतना नहीं आया, बट डिफरेंस इंजन में वही सेम कंसेप्ट यूज किया एंड देन पंच कार्ड की हेल्प से इनपुट्स दिए जाते थे. ये पंच कार्ड एक रीडर होता था, उसमें पंच कार्ड्स डाले जाते थे एंड फ्रॉम टॉप टू द बॉटम डेटा वॉज रेड. Okay, and when the data was read, it was processed and it generated the output by using printer, a bell and another device called as a curve plotter. ये devices होते थे, जैसे अब हमारे पास printer होता है, right? So plotter होता है.
वैसे ही उस टाइम पे एक प्रिंटर, बेल एंड एक कर्व प्लॉटर होता था जिसकी मदद से हमारा आउटपुट जनरेट होता था। The next device was Harvard Mark I. It was also known as IBM Automatic Sequence Control Calculator ASCC. It was invented by Howard H. Aiken in 1943. It was the first electromechanical computer which runs on electricity and mechanical power both. So beta next device was ENIAC. ENIAC stands for Electronic Numerical Integrator and Computer. This device was the first electronic general purpose computer. It marked the era of modern computer. यहाँ से हमारा first generation computer start हुआ, यहाँ से हमारे modern computers बनने start हुए थे. It was completed in 1946. It was developed by whom? John Presper Eckert and John W. Mauchly developed ENIAC. Okay, ENIAC used decimal digits. ये decimal digits use करता था instead of binary digits. Binary digits ना use करके ये decimal digits use करता था. It was the first high-speed electronic computer. It was in the use from 1946 to 1955. 1946 में ये बनना खत्म हुआ और 1946 से 1955 तक हमने ENIAC को यूज किया. So beta next device was UNIVAC 1. Just like ENIAC, they both were first generation computer. UNIVAC stands for Universal Automatic Computer 1. It was the first commercial computer. आपको याद होगा ENIAC हमने अभी पढ़ा था. It was general purpose computer. Normal arithmetic calculations perform करनी हो तो हम ENIAC यूज करते थे. अगर हमें business to business transaction शुरू करना था तो we used UNIVAC at that time. So who designed it? J. Presper Eckert and John Mauchly. दोनों ने ही UNIVAC भी बनाया and ENIAC भी बनाया. It was produced in USA में ये बनाया गया था. Okay, ये computers vacuum tubes और drums use करते थे, magnetic drums. So what was the next? It was EDVAC. EDVAC stands for Electronic Discrete Variable Automatic Computer. It was the first stored program computer जिसमें हम storage करना शुरू कर दिया था डेटा को. डेटा भी तो स्टोर करना ज़रूरी है, राइट? अब हम कितना डेटा याद कर सकेंगे? नो, तो इट हैज़ टू बी स्टोर्ड समवेयर. तो EDVAC हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता था. इट वाज डिजाइन्ड बाय वॉन न्यूमैन इन 1952. इट हैज़ अ मेमोरी टू होल्ड बोथ द स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज द डेटा. सो विच वॉज द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर? ऐसा कौन सा फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर था जो आप एक जगह से दूसरी जगह लेके आसानी से जा सकते थे? दैट वॉज Osborne 1. So it was released in 1981 by the Osborne Computer Corporation. So what was the first computer company? सबसे पहले कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी जिसने कंप्यूटर्स बनाने स्टार्ट करे? It was Electronic Controls Company. It was founded in 1949 by J. Presper Eckert and John Mauchly. So now let's begin with the computer generations. Generations are divided into 5 categories: first generation, second generation, third generation, fourth generation, fifth generation. First generation के जो कंप्यूटर्स थे वो हमारे कौन से और कौन से पीरियड तक चलते थे? दैट वाज 1940 से लेकर 1956 में यूज करे गए. 1956 से 1963 में वी यूज सेकेंड जनरेशन. 1964 से 1971 वी यूज थर्ड जनरेशन. 1971 से हमने स्टार्ट करे फोर्थ जनरेशन जो हम अब तक यूज़ करते आ रहे हैं. एंड अब जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कोई लोग फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स भी करते हैं. और आगे का जो हमारा फ्यूचर होगा दैट विल ऑल डिपेंड अपॉन योर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जिसमें रोबोटिक्स इन्वॉल्व होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होगी. सो लेट्स स्टडी ऑल इन दिस. सो बेटा नेक्स्ट वॉज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर.
इनका यूसेज टाइम था 1940 से 1956 के पीरियड में। कंप्यूटर्स ड्यूरिंग दिस टाइम वर वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव। एक तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते थे एंड ऊपर से इतनी ज़्यादा हीट भी जनरेट करते थे। कैसे करते थे हीट जनरेट? आई विल बी टेलिंग यू। So, examples of first generation computers were UNIVAC, ENIAC. We have already started before. Computers of this generation make use of vacuum tubes and magnetic drums. वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे सर्किट्स फॉर्मेशन के लिए एंड मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ करते थे मेमोरी स्टोरेज के लिए। अब बेटा वैक्यूम ट्यूब्स कैलकुलेशन के लिए तो यूज़ हो रहा है, सर्किटरी के लिए भी यूज़ हो रहा है, साथ साथ इंफॉर्मेशन के लिए भी स्टोर करते थे हम इसमें। बट देयर वॉज अ ड्रॉबैक। क्या ड्रॉबैक था? अब इसमें अगर हमारी मेमोरी स्टोर हो रही है, इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, तो इससे क्या होता था, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती थी एंड बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ हीट द वैक्यूम ट्यूब्स गेट्स डैमेज हो जाते थे। इस वजह से मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स को लाया गया टू रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स को जब रिप्लेस हो गया था तो मैग्नेटिक ड्रम्स जो थे वो सिलेंड्रिकल शेप के थे, केमिकल मेटल कोटेड हुआ करते थे एंड प्लस इसमें डेटा जो है स्टोर होता था। समझ में आया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत एक्सपेंसिव थे ये हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। लॉट ऑफ हीट वॉज जनरेटेड एंड अनदर थिंग, इस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशनर्स का यूज़ होता था। एयर कंडीशनर्स भी बिग बिग साइज़ के होते थे एंड अब बेटा देखो कॉस्ट आपकी एक तो इसको रन करने में भी लग रही है, प्लस हीट को कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशनर्स की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। सो देयर वॉज अ ड्रॉबैक, दैट वॉज इट वॉज टू बल्की इन साइज। एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी, हार्डवेयर फेलियर होता रहता था। जितना ज़्यादा बेटा पुराने सिस्टम्स में हार्डवेयर फेलियर तो होते हैं, ओके। सो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली ऑल्सो, और साथ ही साथ इसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बहुत ही स्लो होता था। सो इट वॉज नॉट अ गुड काइंड ऑफ कंप्यूटर। So now you can see the picture of first generation of computer. आप देखते ही आइडेंटिफाई कर पाओगे, they are taking the whole room size, so they are too bulky in size, right? So these were replaced by second generation of computers. In this beta transistors replaced vacuum tubes. वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर्स ने। एक ट्रांजिस्टर बेटा 40 वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर होता था। सो आप सोच ही सकते हो कितना एनर्जी एफिशिएंट था ये। प्लस transistor was small in size. Transistor used special material that helps in controlling the flow of electricity. Transistor based circuits जो होते थे they were much better than your vacuum tube based circuits. Okay, कैसे better थे? Because they were smaller, they were faster, they were more powerful और energy efficient तो थे ही, right? इससे कंप्यूटर भी हमारा स्मॉलर साइज का हुआ, फास्टर हुआ एंड चीपर हुआ, लेस एनर्जी यूज़ करते थे। इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान हुआ करता था, नॉट दैट मच ईजी बट होता था इसमें प्रोग्रामिंग भी। ओके, कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन व मेनली यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्रीज़ में ये ऐसे सिस्टम्स को यूज़ किया जाता था। अब हमारे ये ट्रांजिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो हु मेड ट्रांजिस्टर्स? ट्रांजिस्टर्स को किसने बनाया? बेटा ट्रांजिस्टर्स वर इन्वेंटेड इन 1947 बाय विलियम शॉकली एंड जॉन बर्डीन, प्लस Walter Brattain also helped to invent transistors. They were from Bell Labs. So now अगर हम देखें सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स, वो अभी भी इनपुट देने के लिए उनको प्रॉब्लम होती थी बिकॉज दे वर यूजिंग पंच कार्ड्स। पंच कार्ड्स के लिए पंच कार्ड का रीडर होना ज़रूरी होता था। इनपुट जैसे आप कीबोर्ड्स के थ्रू देते हो अब के ज़माने में, बट पहले पंच कार्ड्स यूज़ किया करते थे। और प्रिंट आउट्स जो होता था आउटपुट की फॉर्म, मतलब आउटपुट जो आता था वो प्रिंट आउट्स की फॉर्म में आता था। ओके, दीज वर ऑल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर्स दैट स्टोर द इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी। ये फर्स्ट ऐसे कंप्यूटर्स थे जो मेमोरी में अपना इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते थे। ओके, सो नाउ
दिस वर द टाइप्स ऑफ, ऐसा कुछ आपका दिखता था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. So we have already started the advantages of this second generation computers. They were smaller in size, more reliable, less heat generated. लेकिन तब भी heat तो generate करता था because हमारा जो information store हो रहा है वो हम magnetic drums तो use करते ही थे, right? So it was less prone to hardware failure. इसमें hardware failure ज़्यादा नहीं होता था, चीज़ें ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती थी. And we started using this system, kind of this system in commercial use also. आपको मैंने अभी बताया एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री में हम यूज़ करने लगे थे. बट डिसएडवांटेज वाज आल्सो देयर. इतनी हीट अगर जनरेट हो रही है तो हमें एयर कंडीशनिंग की तब भी ज़रूरत पड़ती थी. एंड हर एक कंपोनेंट को मैन्युअली असेंबल करना वाज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. So now what came next was your third generation computers. Third generation computers में हमने second generation में पढ़ा था बेटा कि आपके जो information या flow of electricity हो रहा है वो circuits के through हो रहा है, right? So ये भी कुछ ऐसा ही होता था. थर्ड जनरेशन में integrated circuits आए. इस स्टेज में हमारे क्या डेवलप हुए? इंटीग्रेटेड सर्किट्स. आपको ये याद रखना है. सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लोज. एक क्लोज्ड पाथ होता है, छोटा छोटा, आपको पता भी नहीं होगा, इतना माइन्यूट होता है एंड वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करता है. एन इंटीग्रेटेड सर्किट हैज मेनी एलिमेंट्स दैट आर इंटरकनेक्टेड एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते थे वो बहुत ही स्मॉलर साइज के होते थे एंड बहुत ही ज़्यादा चीपर होते थे एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. सेकेंड जनरेशन तो पूरा होल डिपेंडेंट है ट्रांजिस्टर्स पे. उसी का ही और कॉम्पैक्ट वर्जन निकला इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ओके, सो ये जो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स होते थे इसमें कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स में इंटरैक्ट करना यूज़र ने स्टार्ट किया. ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद डेवलप हुआ विच अलाउड द डिवाइस टू रन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन. सेकेंड जनरेशन के सिस्टम्स में वन एट अ टाइम ही आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते थे. आप मल्टी प्रोसेसिंग नहीं करते थे. बट थर्ड जनरेशन में ये कम बैक हुआ नया फीचर के साथ कि वी कैन रन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस एट वन टाइम. So computers for the first time became accessible to a mass audience. ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते थे and they were smaller also, cheaper also. Okay, so हमारे जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो ट्रांजिस्टर्स को उन्होंने छोटा कर दिया. जो ट्रांजिस्टर्स हम सेकेंड जनरेशन के यूज़ करते थे और उनको ट्रांजिस्टर्स को प्लेस कर दिया सिलिकॉन चिप्स के अंदर. Okay, and these silicon chips were known as semiconductors. तो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स क्या यूज़ करते थे? सेमीकंडक्टर्स यूज़ करते थे. इससे क्या हुआ? स्पीड इंक्रीज हुई कंप्यूटर्स की. सिलिकॉन चिप क्या होता है? सिंगल डायमंड लाइक क्रिस्टल होता है दैट गिव्स अ लॉट ऑफ पावर टू आवर गैजेट्स. Okay, so third generation computers were more superior to second generation computers. अकॉर्डिंग टू, अगर हम कंपेयर करें तो स्पीड एंड एक्यूरेसी ज़्यादा थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. प्लस मोर रिलायबल भी थे. दे वर स्मॉलर इन साइज एंड और क्या कह सकते हैं हम, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती थी. एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इट वाज वेरी इजी. बट डिसएडवांटेज भी था. अगेन हीटिंग इशू होता था. अ लॉट ऑफ हीट वाज जनरेटेड. Plus, highly sophisticated technology required for the manufacture of IC chips. Integrated chips को बनाने के लिए भी बहुत highly technology की ज़रूरत पड़ती थी. So, कैसे दिखता था हमारा थर्ड जनरेशन? It was like this. अभी भी तो देखो हमारे थोड़ा थोड़ा काइंड ऑफ ऐसे ही दिखते हैं बट अब थोड़े से और लीन और कॉम्पैक्ट. अब थोड़े से अच्छे स्क्रीन के भी आ गए हैं फोर्थ जनरेशन में which you are using right these days. Okay, so fourth generation हमारा time period क्या था? 1971 and till now we are using fourth generation computers, right? तो fourth generation computers के अगर मैं example आपसे पूछूं तो वो क्या होंगे? Desktop computers, laptop, palm top.
अब मैंने पाम टॉप बोला तो बेटा पाम टॉप से आप याद रखना दे वर दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स वर हैंड हेल्ड, इसको हम हाथों में पकड़ना बहुत आसान होता था. सो दीज कंप्यूटर्स आर स्टिल इन यूज एंड आर बीइंग फर्दर डेवलप्ड, आगे भी इसमें काम कर रहे हैं. So microprocessor chips were developed during this stage. अब अगर आपसे पूछा जाए फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ होता था तो माइक्रोप्रोसेसर चिप्स यूज़ होती थी. ओके, माइक्रोप्रोसेसर चिप क्या होता है बेटा? इट इज़ अ डिवाइस दैट यूजेस डेटा इन इट्स डिजिटल फॉर्म एज इनपुट. अब हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है पंच कार्ड्स ये सब, इसमें हमारा इनपुट करना बहुत ही ईजी होता था और ये डिजिटल फॉर्म में ही हमारा इनपुट लेता था. वी मेक यूज़ ऑफ कीबोर्ड डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस का हम जॉयस्टिक्स ये सब, इसमें माउस, ये सब हमारा फोर्थ जनरेशन में ही बना था. ओके, देन इट प्रोसेसेस, जो हम इनपुट हुआ है ये बिल्कुल आपने पढ़ा होगा थर्ड क्लास में आईपीओ साइकिल. आईपीओ साइकिल के बेसिस पे इसमें वर्क होता था. इनपुट होता था, उस पर प्रोसेस होता था एंड आउटपुट देता था 0 एंड 1 कोड की फॉर्म में. सो ये जो 0 और 1 मैंने आप इंट्रोड्यूस किया है, दिस 0 एंड 1 आर नोन एज बाइनरी नंबर्स. ओके, ये कंप्यूटर ऐसी लैंग्वेज जो 0 और 1 है वो समझ पाता है, मशीन लैंग्वेज. सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन आर वेरी स्मॉल, जो मैंने आपको बताया हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, पाम टॉप एग्जाम्पल है, टैब्स आपने देखे होंगे, राइट. सो दीज कंप्यूटर्स वर फास्ट, एफिशिएंट एंड हर जगह वी आर यूजिंग वाइडली यूज्ड हैं ये. माउस, हैंडहेल्ड डिवाइसेस, जॉयस्टिक्स, वो सब इस स्टेज में बनी थी. ओके, सो कंप्यूटर्स अब हम बन तो गए अच्छे, फोर्थ जनरेशन के आप यूज़ भी कर रहे हो, नेटवर्किंग भी होती है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड होता है, राइट. हम इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं. तो इसी स्टेज में बेटा क्या डेवलप हुआ, हमारा इंटरनेट डेवलप हुआ. Fourth generation computers are more powerful, reliable, affordable than earlier generations. पहले तो cost effective थे, right? And इतनी a lot of heat they were generating and there were many drawbacks. But fourth generation they were very nice and they were smaller. So next is our fifth generation of computers. These computers are still being developed and develop हो भी चुके हैं. You can see a robot, right? ये fifth generation ही तो है पूरा. They are based on artificial intelligence, AI जिसे कहते हैं हम. They have very high storage capacity, speed is super fast and they are very efficient. These such kind of systems are known as supercomputers. India has also developed a supercomputer which is known as Param. This you have to remember. Okay. बेटा हमारे जो फोर्थ जनरेशन के सिस्टम्स होते हैं उसमें एक सीपीयू चिप होती है, राइट. सुपर कंप्यूटर्स में इट हैज़ मेनी सेंट्रल प्रोसेसिंग units. They all are connected together and can carry large number of scientific operations in छोटू से टाइम में. Okay, so computers are being developed in such a way that they can think on their own. अभी तो हम कहते हैं कि dumb machine है system, right? It needs someone, it needs some person to give instructions. But fifth generation के systems ऐसे नहीं होते. They are based on artificial intelligence. So even the laptop also can be recognized as fifth generation of computer, क्योंकि जो हमारे इंटेल की कोर चिप्स होती हैं या कोई भी कंपनी की चिप्स होती हैं वो अलग अलग जनरेशन पे बनती हैं, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. तो हमारी जो इंटीग्रेटेड चिप होती है वो फिफ्थ जनरेशन की भी होती है. ओके, सो मे बी दिस लैपटॉप कंटेन्स अ फिफ्थ जनरेशन ऑफ इंटेल कोर चिप. दैट्स व्हाई इट इज़ योर fifth generation of computer. Okay, so that was all for today. This is the end of your chapter. In the next class, we will be learning something else. So till then, stay tuned and subscribe to my channel and share and like all my videos. Till then, bye bye.